कि आपके अकॉर्डिंग आज के इस तेजी से बदलते हुए दौर में एजुकेशन का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? का मेन पर्पस होना चाहिए एक हैप्पी चाइल्ड को डेवलप करने का। वो बच्चा आया और उसने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा। द प्रोजेक्ट व्हाट द चाइल्ड एंजॉय इज डूइंग, दैट इज व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ एजुकेशन. सो इट इज नॉट जस्ट academics marks, it is all about developing a child with complete wholesome child out there. मैम आज के टाइम पे एकेडमिक्स तो स्कूल करा रहे हैं, पर क्या बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन से लड़ने के लिए, उनको फेस करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं? India is like a big country out there with tier 2, tier 3 cities, villages, remote areas. So क्या सब जगह ये हो रहा है? वो मुझे थोड़ा सा डाउट है. क्या आज के टाइम में भी स्कूल में आर वी प्रमोटिंग मोर क्रिएटिविटी और आर वी स्टिल फिक्सेटेड ऑन द रोट लर्निंग? I think rote learning is still dominating the creativity. And it is not just about marks also, for the teachers also, what I was telling you previously also, the curriculum is huge, the delivery time is limited, so they don't go deep. If you don't go deep, you won't have creativity. Seriously recommend the schools to take up creativity as prime and just work around it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जीएस एडुकास्ट, जहां पर हम बात करते हैं क्लासरूम की दुनिया के बाहर के उन टॉपिक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। मैं हूं प्रगुण, मेरे साथ है मेरे को होस्ट मोहित एंड वर्षा, एंड इट इज़ माई प्रिविलेज टू वेलकम मिस अलका सिंह, हु इज़ an educational leader and a principal of Bluebell Model School from Gurgaon. Alka ma'am is the recipient of the Grand Jury Award 25-26 and the top awardee of the National Teacher Award 2025. Her efforts have made vital changes in the Bluebell School and has made it one of the top educational institutes of India. Known for her focus in innovation, experiential learning, and holistic development, she is an inspiration to parents, students, and teachers alike. Welcome to the podcast, ma'am. Thank you so much. मैम आज के शो की शुरुआत करता हूँ मैं आपसे। मैम पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके अकॉर्डिंग आज के इस तेजी से बदलते हुए दौर में एजुकेशन का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? इस बदलते हुए दौर में अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसका मेन पर्पस होना चाहिए एक हैप्पी चाइल्ड को डेवलप करने का। साथ ही में ऑब्वियसली एकेडमिक्स, मार्क्स, स्किल सेट सब कुछ है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है। और हैप्पी कैसे होगा? हैप्पी तभी होता है बच्चा जब वो जो भी कर रहा है उसमें एन्जॉय करेगा वो। जो कर रहा है वो हम क्या दे रहे हैं स्कूल में, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चा आया और उसने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा, द प्रोजेक्ट व्हाट द चाइल्ड एन्जॉय इज़ डूइंग। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द सोल पर्पस ऑफ एजुकेशन। अगर आप एनईपी, एनसीएफ की भी बात करते हैं, they also talking about the holistic education. So it is not just academics, marks, it is all about developing a child with complete wholesome child out there. जो एक term मैं अभी use कर रही थी कि whole, happy and complete child, that is important. I think that should be the purpose of education. Ma'am, next question मैं आपसे पूछना चाहूँगा that in today's time, how would we define what is a real great school? How would we define, how would we do that? When I say a real great school, for me, a real great school is a school where the child, when the child enters, the steps into the school, there's a different energy. The child smiles. And once the child is going back, he misses the school and longs to come to the school the next day. That should be the ideal school. And I think the previous question also, when we are talking about like what is the purpose of education, I think that is the purpose of education. That when the child is coming to the school, the child is happy coming to the school and the child feels fulfilled coming to the school. और मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत ये मिसिंग होता है। तभी आप देखोगे, अगर आप ट्रेंड्स देखोगे बच्चों के एब्सेंटिज्म के, द स्टूडेंट्स डोंट वांट टू कम टू स्कूल। एंड स्पेशली सीनियर ग्रेड्स में जाते-जाते अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बिलॉन्गिंगनेस टू द स्कूल। सो सेकंड, ये जब हम बात करते हैं आइडियल स्कूल और द स्कूल ऑफ द फ्यूचर और अ स्मार्ट स्कूल, इन सबको मैं कोलैबोरेट करते हुए बोलूँगी कि द टीचर कनेक्टेडनेस, द रिलेटेडनेस इन द स्कूल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, टीचर, टीचर, पेरेंट, principal, teachers,
आई थिंक ये पूरा जब बहुत ब्यूटीफुल सिनर्जी अगर होती है, द स्कूल कल्चर इज अ हैप्पी कल्चर, एंड व्हेन इट इज अ हैप्पी कल्चर ऑटोमेटिकली आप बेस्ट दे रहे हो बच्चे को, यू आर गिविंग द बेस्ट स्किल सेट, यू आर गिविंग द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उसके आगे भी अगर हम बोलते हैं कि वो स्कूल जो बच्चे को ग्राउंडेड रहना सिखाए, नॉट लाइक stay grounded no matter what. Even if you fail, stay grounded. Even if you're flying, you're topping, stay grounded. That is possible only provided you work on the child's internal energy and strength. कि आपके अंदरूनी शक्ति बच्चे को उससे कनेक्ट करना। तो अगर हम पूरा अगर वापस जाते हुए देखें, सो कनेक्ट टू योरसेल्फ, वो पॉसिबल है प्रोवाइडेड उसका कनेक्ट विद टीचर्स। टीचर्स आर गिविंग दैट स्पेस, the happy space to the child where he can learn happily, he can create, he can be as creative as possible, and he can always ask questions without that inhibition कि भाई मुझे जज तो नहीं करा जाएगा, am I right, am I wrong. So बहुत बच्चे स्कूल इसलिए भी नहीं आना चाहते हैं बिकॉज कभी एक पॉइंट पे उनको दे बीन शंड, ये क्या क्वेश्चन था. सो दैट इज वेयर अगेन रिलेशनशिप बहुत बहुत मैटर करती है, मुझे ऐसा लगता है. एंड नेक्स्ट इज व्हेन आई वाज सेइंग पेरेंट टीचर, पेरेंट स्कूल रिलेशनशिप, वो भी बहुत मैटर करती है. पेरेंट का फेथ होना ऑन द स्कूल, सेइंग दैट ओके माय चाइल्ड इज गोइंग टू गेट द बेस्ट. आई थिंक वो एनर्जी जब ट्रांसफर होती है, सो द स्कूल ऑल्सो गिव्स द बेस्ट. So that is also very, very, very critical. I think I completely agree with your point. But just to pick up from what you just mentioned, that teachers sometimes, when students sometimes like they get shunted, that they ask a question and teachers say just quiet for now. So, and I have been at the receiving end of that during my school days. I have been at that position. So why does that happen? I mean, shouldn't that be encouraged? That even if it is a stupid question, teacher might consider it as a stupid question. Then, but still, it happens. I think the conditioning which was there previously, when the teachers were trained, so the conditioning was very different. The conditioning was हमें आके ये syllabus complete करके बच्चे को बताना है. एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मे बी द टीचर्स आर नॉट रॉन्ग ऑल्सो, वो टाइम कंस्ट्रेन जिसमें सिलेबस डिलीवर करना है, सो यू डोंट वांट टू लिसन. यू से ओके, यहाँ से प्रिंसिपल ने बोला है 10 days finish the syllabus, the in charges also say that might be one of the reason. And second is there was not so much of talk about the mental health or empathy, compassion towards the students. वो पहले इतना था नहीं जितना लाइक आज अगर हम देखें. आई थिंक वी वांट द चाइल्ड टू बी हैप्पी, राइट? वी वांट द चाइल्ड टू बी सेल्फ एक्सप्रेस्ड, वी वांट द चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चंस. वी लाइक अ क्लास व्हिच इज अ नॉइजी क्लास. प्रीवियसली कैसा होता था? पेन ड्रॉप साइलेंस, पुट योर हेड्स डाउन. लाइक आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, सो वैसे ही होता था. सो वो क्वेश्चन पूछने का दैट क्यूरियोसिटी वाज नॉट देयर. ये इतने क्वेश्चन मत पूछो. I think that was the reason. And now with the NEP coming in, it has to be more reasoning. You don't have to, do any kind of recap with your syllabus ke padha diya fir se ek recap kare. You want the students to reason it out. I'm an economics teacher too. So the first thing I ask, why should we study this topic, beta? Well, not that, oh, national income is blah blah. I said, why? Why? When is it going to help you in your life? Just think about it. So the moment you make the child relate, he's going to ask questions. So I think the whole perception is changing. And with NEP, if implemented absolutely in the right sense, I think things would change a lot, a lot. Agree, completely agreed. मैम आज के टाइम पे एकेडमिक्स तो स्कूल करा रहे हैं, पर क्या बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन से लड़ने के लिए, उनको फेस करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं? अगर इसका बहुत ऑथेंटिक आंसर मैं दूं, मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और मैं किसी को अंडरमाइन करते हुए नहीं, बट हमारा मतलब इंडिया इज लाइक अ बिग कंट्री आउट देयर विद टियर 2 टियर 3 सिटीज, विलेजेस, रिमोट एरियाज. सो क्या सब जगह ये हो रहा है? वो मुझे थोड़ा सा डाउट है. ऑल्दो प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बहुत काम करा है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सो मच ऑफ फोकस ऑन इनोवेशन. बट रियल लाइफ के लिए
कराने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बात करते हैं लाइफ स्किल्स की, अभी काफ़ी काम हो रहा है सीबीएसई की तरफ से। आई एम अ सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल, सो वहाँ से बहुत काम हो रहा है। बट फिर भी रियल लाइफ में जाने के लिए मैंने पढ़ा, हाउ डू आई अप्लाई, वो टीचिंग आ रही है, पर अभी आई वुड से ऑलमोस्ट 70% मोर वर्क हैज़ टू बी डन, इट्स जस्ट कमिंग इन। और रियल लाइफ में जाके मैं फेल होंगी किसी एक प्रोजेक्ट को लेके, तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल अपने स्कूल का दूंगी। हमारे स्कूल में वी अलाउ द स्टूडेंट्स टू गिव देयर स्टार्टअप आइडियाज, वी हैव लॉट ऑफ events around it. So when they give the startup ideas, they come up with, let's say, one idea, we say reject it. So the child knows that rejection is not like rejection to him, the rejection is a rejection to the project. भाई बच्चे को गलत नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। और मैं साथ में बोलती हूँ, इज इट अ नो फॉर नाउ और एवर? सो बोलेंगे मैम नाउ। सो मैंने कहा फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेट्स डू इट। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है कि लाइफ में कल आप जाके आप इंटरव्यूज दे रहे हो, फर्स्ट इंटरव्यू नहीं क्रैक करा तो ओ माय गॉड आई एम अ फेलियर, वो स्टेटमेंट ही हट गया। I am a person who's going to try every time. He still learn that Yes. he has to keep trying no matter what. Yes. And second is like the autonomy to decide and take up conversations. I think वो मिस है स्कूल में कि बच्चों को बताया ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नाउ यू गो अहेड। मैं बोलती हूँ अदर वे राउंड, आस्क देम कि you create the rules, you create the regulations, we'll guide you. If there's nothing which is like absolutely perfect, we'll guide you. But करें तो आप। और इसमें फिर एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। हमारे स्कूल में हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लास्ट 2 ईयर्स से हमारी इंडिया के लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस है। आई डोंट इवन स्टेप आउट दैट वे। एक इनिशियल फ्रेमवर्क है, द स्टूडेंट्स टेक अप एवरीथिंग फ्रॉम बजटिंग टू प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, एवरीथिंग इज देयर्स। ऑब्वियसली बैक एंड में मैं देख रही हूँ, बट आई वॉन्ट देम टू लर्न। And I think so many of them, when they go out in the life, they say कि मैम वो skill जब सीखा था ना, management skill, decision making, problem solving, पानी खत्म हो गया क्या करेंगे? Notebooks are not there. They're asking for coffee. Very small thing. But in that scenario also they're taking it up. I think ये जो life skills है ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिंदगी में बाहर जाके जो करते हैं, schools should be training that. And I'll once again take one more example, which is quite close to my heart also. My son Vedansh, he started off with his startup after doing his engineering and after his first job. And when he started, there was this thought, because as a principal, I thought, इतना late इस समय, शायद ये 6 साल पहले इसको ये मौका मिलता, तो things would have been different. So with the same thought, मैंने स्कूल में यूनिकॉर्न सेल स्टार्ट करा, which is a entrepreneurship cell. The kids come up with their ideas. I get angel investors, actual angel investors. आप प्रेजेंट करो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर स्कूल को और हर बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए स्कूल में रहते हुए, so that when they go to real life, they just take it up. Like it's a very tremendous idea जिससे बच्चों को इन सब से निकलने का मौका है। आई थिंक इसके साथ बच्चों को लाइफ स्किल्स भी सीखने को मिलेगा, प्लस जो एकेडमिक्स रहेगा दैट विल बिकम अ सपोर्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट एक सोल थिंग जिस पे बच्चे डिपेंड करते हैं या पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं। इट बिकम समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। Yeah, absolutely. I would say, again, I would not say compliment to academics. I would say academic is going to complement this, the other way around. Because पहले हमें था कि पढ़ाई है, मार्क्स हैं, that's it. मुझे लगता है स्किल सेट है सब है, इसलिए academics है। हम आज के टाइम में जैसे हम स्कूल्स की बात करें, सो क्या आज के टाइम में भी स्कूल में आर वी प्रमोटिंग मोर क्रिएटिविटी और आर वी स्टिल फिक्सेटेड ऑन द रोट लर्निंग? Again, it's actually a complex question. The reason is, if you're talking about, again, India as a whole, I think rote learning is still dominating the creativity. Although, the small baby steps have been started off, but I feel that rote learning is, and the reason behind it, I personally feel, is because the marks are given importance to a certain extent. And it is not just about marks also, for the teachers also, what I was telling you previously also, the curriculum is huge, the delivery time is limited, so they don't go deep. If you don't go deep,
you won't have creativity. The question, what you're saying, you won't allow the students to question, so the creativity would not come out. So that kind of space is still missing. And seriously recommend the schools to take up, uh, you know, creativity as prime and just work around it, like a back walk and just check it out. What can be done so that, creativity can be honed in a school? क्या करा जा सकता है? क्या मुझे टीचर्स का वर्कलोड थोड़ा-सा कम करना है, ताकि उनको स्पेस दें? या क्या मैं स्कूल के टाइमिंग्स कहीं फ्लक्चुएशन, कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लेके आऊँ? और फिर नेक्स्ट इज़ असेसमेंट जो हम कर रहे हैं। There is so much what CBSE is talking about, competency-based assessment. But is it 100% no? They're still working on it. So creativity can come only provided the assessment is 100% competency-based. So then I don't have to mug up anything. I just have to understand everything. And with my understanding, काफ़ी अगर आप देखें, case studies have come up, assertion reasoning have come up. मतलब जो पेपर के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है, फ़र्क तो पड़ेगा इसमें क्रिएटिविटी से, बट it's going to take time. Because rote learning was, if you look at it, हम अपने गीता मतलब जो पढ़ते थे, वो भी कहीं ना कहीं मेमोराइजिंग रेपिटेशन पे थी, तो वो काफी कांस्टेंट है हमारे में, बट Like it's very deep rooted. deep rooted, yeah. So it's going to take time, but at least the beginning is there, yeah, taken place, and you can see the creativity somewhere, and seriously wish that it reaches the the remotest areas of India, because I belong to Rajasthan, and just yesterday I had met one of the teachers from Rajasthan. Again, he was sharing that one school, I do not know, he was saying 150 students, 4 teachers. So where is the creativity? What are we talking about then? These are beautiful words for us to implement. Let's say I'm implementing, but then is India me? Is education me? Or is education one school or a cohort of, let's say, 100,000 schools? No. India is like huge. And there's some pain which is there inside. I always feel when I go visit, when I talk, कि क्या कर रहे हैं, तो जी टाइम ही नहीं है, वो जनगणना में चले गए हैं, SIR में चले गए हैं, 4 ही टीचर बचे, 2 ही टीचर बचे। सो उस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक education has to be taken up as education, where give the child the complete space to be as creative as possible, जो हम बात कर रहे हैं। एंड साइमल्टेनियसली एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। अगर आप देखें, माई विनिंग, माई स्कोर, माई रिपोर्ट कार्ड, सो जैसे कोलैबोरेटिव होगा तो भी क्रिएटिविटी एनहांस होगी, एंड दिस रोट लर्निंग इज गोइंग टू गो अवे because I have to be the topper. So obviously rote learning, I'm going to memorize more, but as a team when we are working, I don't think so I have to memorize that way. Another point of view. कहीं ना कहीं मैम ये रोट लर्निंग जो है ये टेस्टिंग सिस्टम की वजह से भी तो रुकी नहीं हुई कहीं है, बिल्कुल रुकिए सर। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम बात करें, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स निकलने इतने हैं, तो मैं समझ तो लिया मैंने, बट मैं उस पैटर्न में एवरी सेकंड को बचाने के लिए यस स्पीड speed, speed, speed. So what am I doing? I'm doing the same concept again and again. So is it the creativity or repetition? So that is something again we have to think about it. And that's, I think most of the parents also should be thinking about it, कि आपको नीट क्लियर करना है, आपको जेई क्लियर करना है, क्लैट क्लियर करना है, सो आप क्या कर रहे हैं? पहले स्कूल पढ़ा, फिर कोचिंग में गए, कोचिंग ने रेपिटेटिव टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट ले लिए। व्हाट इज इट मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट इज रिपीट 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 एंड रिपीट। सो that's what I feel about when you talk about rote learning. I think unfortunately, I guess rote learning जो है एक safe area बन गया है, that you do this, at least this much is guaranteed. Yeah, because there's no risk taking, na? So the moment I'm creative and I think and I write my question. So and marks मेरे कट जाएंगे। अभी अगर आप देखें बोर्ड के, ऑब्वियसली बोर्ड के पेपर्स हम लोग चेक करते भी हैं और देखते भी हैं। सो बच्चे का लिख रखा है वन स्टेटमेंट, वॉट एवर वन स्टेटमेंट, इफ द चाइल्ड राइट्स दिस वन स्टेटमेंट ही इज गोइंग टू गेट हाफ अ मार्क, द नेक्स्ट स्टेटमेंट ही इज गोइंग टू गेट वन, एंड द चाइल्ड इज स्टक कि भाई मुझे तो ये सब लिखना है ताकि 4 मार्क्स आ जाए मेरे।
not that I can be creative as possible, and the teacher gives you a 0. You just mentioned this and मुझे immediately मेरे एक time का याद आया. When I was in 12th standard, so during my pre-board examinations, sociology, I had the subject sociology. I mugged up everything. For the very first time, I was mugging up very, very fast and I mugged up everything. And paper में as it is सारा करके आ गया. Great mark. I came first in the class in pre-boards. Then when the second pre-board came, this time I did that way कि हाँ नहीं समझ के करते हैं कुछ अपने आंसर्स क्रिएटिविटी लेके आते हैं 50%. So this is where the problem lies. मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा ट्रेंड अगर चेंज होगा, टीचर्स अप्रिशिएट द क्रिएटिविटी देन द एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक और द नोट्स और व्हाटएवर. आई थिंक देयर द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. थिंग्स आर चेंजिंग धीरे धीरे. अगर I guess वो आप हर एक लेवल पे टीचर स्टूडेंट सब पेरेंट्स सब लेवल पे सब हुआ. लेवल पे, बट द मदर, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, किताब खोलो पढ़ो, इट्स अ वेरी कॉमन वो स्टेटमेंट. रोट लर्निंग का हाँ, एनकरेजमेंट है. ये इनकरेजमेंट है रोट लर्निंग का. उनको पढ़ते हुए दिखना चाहिए. माइंडसेट पूरा चेंज हो. जितने आप प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हैं, जितना आप बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस इंटर्नशिप्स के लिए भेज सकते हैं, वहाँ आपको चेंज आएगा rather than what we are doing right एंड now. इतनी रोड लर्निंग के बाद कई बार बच्चों के लिए भी बड़ा ये फुल एक्सपीरियंस बन जाता है इंटर्नशिप पे जाना या कुछ करना. क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है प्लस डील नहीं रियल है, लाइफ से डील करने की डील करने प्रैक्टिस की नहीं नहीं है. है. सो वो एक फियरफुल एक्सपीरियंस है बिल्कुल. एक सीबीएसई का जो मार्किंग सिस्टम है कहीं ना कहीं वो भी इसको एनकरेज कर रहा है कि अगर वो स्टेप याद नहीं किए या वो स्टेप में नहीं बनाया. मुझे लगता है सर, इट इज नॉट जस्ट सीबीएसई का मार्किंग सिस्टम, एनी असेसमेंट सिस्टम नाउ, कॉम्पिटिटिव, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, हर जगह वही है कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन तो रूट लर्निंग ही होगा ना. ये तो याद करके अनलेस अनटिल इट्स अ केस स्टडी, और अनलेस अनटिल आप बिल्कुल उसको बोल रहे हो कि अप्लाई दिस टू द रियल लाइफ. सो वो हर जगह ही मुझे ऐसा लगता है कि every single space where you're not trying to look at the creativity or the competence of the child, यस. you're looking at the knowledge of the child, just knowledge testing जिसकी बात करते हैं. So I think वहाँ उसकी वजह से ये root learning, the whole concept is there. बट चेंज हो रहा है मैम. हमारे टाइम पे एमसीक्यूज नहीं आते थे अब आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा में ही जा रहे हैं. नहीं, एनईपी के बाद में जो लगातार आप असेसमेंट सिस्टम है, इवन इफ लुक एट द बुक्स, जो बुक्स आई एनसीईआरटी बुक्स, हर एक में आपको बहुत चेंज दिखता है. मतलब एक बार तो लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है एनसीईआरटी बुक्स की, कंटेंट कहाँ गया. कहाँ गया. Very beautifully done, which is completely experiential if taught in the right sense. That is more important here. मैम मेरा क्वेश्चन अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है कि काफ़ी बार देखा गया है कि जो स्कूल टॉपर्स या क्लास टॉपर्स होते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं उतने सक्सेसफुल नहीं होते. उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है. Actually, बिल्कुल मैं एकदम लेबल नहीं करूंगी, बट स्टिल आई वुड से कि जो स्कूल टॉपर्स, जो बच्चे ने सिर्फ केवल एकेडमिक ओरिएंटेड रहा एंड उसने कहीं पार्टिसिपेट नहीं करा, कहीं भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश नहीं करी, सेफ जोन में चला कि मैं टॉपर था, मैं टॉपर रहा, टॉपर रहूंगा. सो वो बच्चे ने कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें वर्क नहीं करा, उसने कभी क्रिएटिविटी पे भी वर्क नहीं करा. उसने सिर्फ काम करा कि एकेडमिक्स जो मेरी नॉलेज उसको और बढ़ा के प्रैक्टिस करके आई शुड गेट द मार्क्स. और द मोमेंट आप लाइफ में जाते हो, यू यूज टू अ सक्सेस, हु आर यू, आई एम द क्लास टॉपर. द मोमेंट यू गो आउटसाइड, एक इंटरव्यू दिया और एक जीडी हुआ, एक जीडी के अंदर आप बोल ही नहीं पाए, आप वेट कर रहे थे कि मैं कब बोलूंगा, कोई मुझे पूछेगा. जीडी इज ऑल अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, यू नो, like how socially aware you are. How much lead can you take? Yeah, exactly. So there you fail. That is a problem. Or this is a study also. Underscorers are more confident because they have to face it, right? And whereas the students who are scoring like really high, their times, not always I would say, their times, they are very, very underconfident, and they, the moment they go in the real life, because आई थिंक इतना बुक्स में इन्वॉल्व थे कि जिंदगी तो देखी नहीं, जिंदगी की तैयारी नहीं करी. और जो बच्चा जिसने स्टेज पे जाके 10 बार स्पीच लेके और वो फंबल कर गया, तो उसको पता है कि मुझे बिना स्पीच के भी कैसे बोलना है और बहुत कॉन्फिडेंटली मैं बोल दूंगा. वो एक फर्क आ जाता है. एक बच्चा है जिसने, आई थिंक रॉन्ग एग्जाम्पल प्रिंसिपल दे रहे हैं, बट कभी एक क्लास जो उसको अच्छी नहीं लगी, उससे बाहर निकला. ही नोस ही मेड अ चॉइस,
ही नोज व्हाट ही इज लूजिंग आउट, और नेक्स्ट टाइम वो क्लास में आके बैठता है। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जबकि इतना प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, बट ये भी है एक एबिलिटी, मतलब जो बच्चा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर अमिस, मुझे ये फीलिंग आती है। और एक सिंसियर एडवाइस टू, मैं सभी को देती हूँ, सिंसियर एडवाइस टू द पेरेंट्स, द स्टूडेंट्स, मेक श्योर in your life you have at least an exposure of making one event in your life successful on your own, खुद करें। मेक श्योर कि आप सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ नहीं भागे, लेकिन साथ ही में अपना स्किल सेट को डेवलप करें। एकेडमिक्स या मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, ये रास्ता हो सकता है, एंड गोल नहीं हो सकता है। एंड गोल इन लाइफ इज द लाइफ स्किल्स व्हाट यू अटेन, एंड एकेडमिक्स इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट। सो ये इम्पॉर्टेंट है हर पेरेंट, हर चाइल्ड के लिए, हर टीचर के लिए भी। मुझे लगता है कि प्लीज वर्क ऑन दिस, सीरियसली वर्क ऑन दिस। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या हम बच्चों को उनके फेलियर से सीखना सिखा रहे हैं या उस फेलियर से उनको डरना सिखा रहे हैं एज अ सोसाइटी? मैम, एज अ सोसाइटी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों है, बैलेंस कर रखा है सोसाइटी ने अपने आप को। कई तो डराते रहते हैं फेलियर से, फेल हो जाओगे तो आप पान का दुकान खोलोगे, राइट? ऐसे वाले एग्जाम्पल्स देते हैं, कैसे हो फेल हो गए। और एक सेगमेंट ऐसा भी है जो रियलाइज करता है दैट फेलियर इज, जो मैं भी बोल रही थी, इज इट फेलिंग फॉर एवर? नो। एक बार फेल हो गए, उसको फिर से ट्राई करते हैं, फिर से कुछ शायद, मतलब मेरे ख्याल से एनालिटिकल भी होना जरूरी हो Yes, जाता है। yes, वो भी नहीं yes. कि एनालाइज तो करें बैठ के कि ऐसे ही, मतलब क्या था जो गलत हुआ, ठीक है, इसको वापस ठीक करके देखते हैं। तो ये मतलब पूरा मैं नहीं बोल सकती हूँ कि हम सिखा रहे हैं, पर मैं कहूँगी सिखाना चाहिए। मतलब अभी इस समय जो पेरेंट है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, पर समय लगेगा। और पेरेंट को खुद को पहले, सबसे पहली बात है, बच्चे की परफॉर्मेंस में खुद की परफॉर्मेंस ढूंढना बंद करना पड़ेगा। एग्जैक्टली राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंजीनियरिंग नहीं क्रैक करी तो आपका बच्चा इंजीनियरिंग क्रैक करे, वो नहीं कर पा रहा है तो आप फेल हो गए। और बहुत बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं, ओ आई फेल्ड। तो बोलते नो, यू नॉट फेल्ड, यू डन अ गुड जॉब। अच्छा कैसा बच्चा है आपका बड़ा, पर ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो आप नहीं फेल हुए, आपने अपना बेस्ट दिया। और कई बार मैं पेरेंट्स को बोलती भी हूँ कि आपका तो एक बच्चा है, कोई आप एक्सपर्ट तो हो नहीं बच्चे को ट्रेनिंग में। एक बच्चा है जो पहली बार 15 साल का हुआ, 16 साल का हुआ, 17 साल का हुआ, सो इट्स ओके। इवन इफ यू फेल, इट्स ओके टू फेल। तो ऐसा तो नहीं कि हम एकदम बेस्ट होंगे। आई वॉज अ मदर एट द एज ऑफ 20, तो मैं अपने बेटे के अपब्रिंगिंग में शायद बहुत बार फेल हुई होंगी, बट देन दैट डजंट मीन कि मैं फेलियर हूँ। तो ये चीज हमें पहले खुद एज अ पेरेंट, देन स्टूडेंट, और ये इसमें मुझे लगता है दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर स्कूल, मतलब प्रिंसिपल, टीचर स्कूल, सबका, और पेरेंट का। जो फेलियर को इतना बड़ा डिजास्टर ऐसे बना के देते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मार्क्स कम आ गए हैं, ऐसे वाला। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा स्टूडेंट आदित्य, जिसके 499 ऑन 500 आए, वो दौड़े दौड़े स्कूल में आए, मैंने कहा कांग्रेचुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, मैम 1 मार्क कहाँ One कटा mark. होगा? तो मुझे, और वह बच्चा आज आईआईटी दिल्ली में है, ही केम आउट ऑफ दैट, कह रहे आई डिड सो, मैंने बोला 499, इमेजिन। आप समझ रहे हैं मैम? बिकॉज हमें कंडीशनिंग कई बार ऐसे जाती है कि मार्क्स तो कटने ही नहीं चाहिए, जबकि फेलियर किसी भी फॉर्म में, मार्क्स के फेलियर डजंट मीन कि आप फेल हो गए। इसका मतलब मुझे 33% से कम कंटेंट आता है, बाकी नहीं आता, क्या करना है मुझे, उसको पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ पाया? तो मुड़ के देखें, हो सकता है क्लास 4th के टीचर खराब थे, मैथ्स के आपका बेस खराब था, तो आज बेचारे 9th में आके फेल हो गए। क्यूमुलेटिव इफेक्ट। Yes, yes. दूसरा है कि मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो होता है। मतलब आप चाहे न्यूटन्स की बात करें, आर्किमिडीज की बात करें, किसी की बात करें, लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स दे ट्राइड एंड फाइनली एक हो। सो वो जो माइंडसेट है, वो चेंज करने की जरूरत है। हो नहीं रहा है, बस समय लग रहा है। पर आई एम हैप्पी कि न्यू पेरेंट्स, जैसे यंग पेरेंट्स एंड अदर पेरेंट्स ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा मोड तो होने लगे हैं उस तरफ। एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट है। इसमें मैम एक और क्वेश्चन मेरा यही बन रहा था इससे रिलेटेड कि शर्मा जी का बेटा एज अ कंपैरिजन टूल,
तो ये भी कहीं इसको बढ़ावा तो नहीं दे रहा है कि हम हमेशा कंपैरिजन में लग जाते देते हैं, देता है, ये भी देता है, बिकॉज हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। भाई ये 5 फिंगर्स एक जैसी तो है नहीं। भाई अलका की एक कैपेसिटी है और मैम की एक अलग कैपेसिटी, आपकी अलग है। तो मेरे को तो अपने से कॉम्पीट करना है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, हम कंपटीशन वो कर देते हैं। अब मैम और मेरा मतलब हम कंपटीशन करेंगे तो मैं भी फेल होंगी और ये भी फेल होंगे। रियलिटी ये है, क्योंकि सबका स्किल सेट वो थोड़ा सा उसमें वर्क करने की ज़रूरत है। मैं काफ़ी पेरेंटिंग सेशंस में एक बात बोलती हूँ पेरेंट्स को कि आप ये रिपीट करना छोड़ो कि तुम्हें नहीं आता, तुम अच्छे से नहीं पढ़ते हो। नो, 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 नो की एनर्जी को बंद कर दो। जिसे सिस्टर शिवानी बोलते हैं सदाई। शी ऑलवेज सेज कि आप बोलो यू आर डूइंग द बेस्ट एज पर योर कैपेसिटी। यू आर द बेस्ट किड। यू लाइक आप जहाँ जितने आपकी क्षमता है उसमें बेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक वहाँ ये चीज़ें बदल जाएंगी। सो कंपैरिजन तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव कंपैरिजन आपको कुछ करना है तो भी मतलब मेरे ये शब्द कंपैरिजन मुझे तो ठीक नहीं लगता। कोलैबोरेशन तो ठीक है, चलो अपन दोनों मिलके पढ़ाई करते हैं, दोनों के मार्क्स आते हैं, दोनों के टोटल करके एवरेज आउट कर लेंगे, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आई डोंट थिंक क्योंकि मैम ये कंपैरिजन ना रिपोर्ट कार्ड से स्टार्ट होता है और सैलरी स्लिप तक पीछे नहीं छोड़ता है। ये लास्ट तक हमारे पीछे रहता है, बट ठीक है, इसको हाँ, धीरे धीरे ओवरकम करना ओवरकम चाहिए करेंगे। पेरेंट्स को। पर अगर आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के अंदर बहुत अच्छा है कि आप प्रोफिशिएंट हैं या आप ट्राई कर रहे हैं या बिगनर हैं। तो कम से कम वो लेबलिंग इतनी डेंजरस तो नहीं है। ज़रूरत है काम करने की, और शायद माइंडसेट जिस दिन हम ये जानने की मेरा कंपटीशन मेरे में ही है, मुझे अपने पे काम करना है, चीज़ें बदल जाएंगी। रादर देन कि कौन क्या कैसे करेगा, कि दूसरे पे ब्लेम कर दिया। टीचर, कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि भाई टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, या हम बोल देते हैं आप घर में ध्यान रखिए। सो दोनों तरफ अगर हम बोलते हैं, ब्लेम गेम से अगर हम हट जाएं और केवल फोकस करें कि भाई जो चाइल्ड है एज अ चाइल्ड, मुझे तो ऐसे लगता है कि एक बच्चा 33% ला रहा था, उसके 50 आ गए, तो उसको ज़्यादा बिगर अवार्ड देना चाहिए एज कम्पेयर टू चाइल्ड जिसके 95 आ रहे थे और 98 आ गए। अगर वो वाला मतलब कि दोनों के फेलियर की अगर हम स्ट्रगल बात करते हैं, दोनों के और स्ट्रगल में कई चाहिए। बार 17% आ रहे थे और 33 पे भी आ गया, तो उसको भी शायद 33 नहीं भी पहुंचा, 17 से 30 भी पहुंचा, तो भी एक एक्नॉलेजमेंट जरूरी है कि बेटा वेल ट्राइड, थोड़ा सा और करना है बस, तो चीज़ें बदलेंगी। मैम आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बच्चा 12th पास कर लेता है तो अपने पूरी स्कूल जर्नी में एकेडमिक्स के अलावा कोई 3-4 मैंडेटरी स्किल्स उसको सीख के जानी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो स्किल बच्चे को आनी चाहिए वो है एफिशिएंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है। दूसरा मुझे लगता है कि उसको उसका इमोशनल कोशेंट पे, लाइक हाउ ईक्यू जो है वो उसको कितना स्ट्रांगली वो ऑपरेट करता है, आई थिंक वो भी बहुत मैटर करेगा। एंड मेरे लिए रिस्क टेकिंग स्किल जो है, मुझे लगता है कि वो प्राइम होती है, स्कूल से लेके जानी चाहिए, सो दैट वो क्रिएटिविटी कभी डाई आउट नहीं होगी। बाकी तो बहुत है, अगर हम बोले टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, दीज आर ऑल मुझे 3 प्राइम लगते हैं ऐसे। इमोशन क्वेश्चन पे जैसे हम कोचिंग इंडस्ट्री से हैं, आपने देखा होगा, कोटा में सुना भी होगा कि फ्रेशर लेने के बाद बच्चा कुछ डिसाइड कर लेता है कल, उसके लिए हमने साइकोलॉजिस्ट हायर करने स्टार्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन हो सकता है कि उसका ईक्यू अगर स्कूल से ही मजबूत हो तो मेरे हिसाब से वो ऐसा कुछ सोचेगा भी नहीं। तो मैम ये बहुत ही जो मैम ने पहले क्वेश्चन बोला था ना, फेलियर को हम डील ले करना नहीं पाते। सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि स्कूल लाइफ में तभी सारी रिस्क यहाँ ले लो आप। तो आपने जो भी फेलियर, यहाँ इतना क्लोज और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है स्कूल्स का कि टीचर्स सपोर्टिव होते हैं, तो आप हल्के से गिरे तो 4 टीचर्स आपको उठाने के लिए रेडी हैं। तो लाइफ में ये नहीं होगा, लाइफ में आप गिरोगे तो खुद ही उठोगे, 4 लोग गिराने वाले और मिलेंगे आपको, तो वो यहीं से सिखा दें। और ये जो सुसाइड वाला जो है ना सर, इसमें काफ़ी बार मैं सोचती हूँ कि सुसाइड कौन करता है? मतलब जो इंटरनली वीक है, मतलब इमोशनली वीक मतलब इंटरनली वीक है। तो स्कूल्स अगर, जो हम भी करते हैं अपने स्कूल में, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस कराते हैं, सेशंस होते हैं हमारे,
मेडिटेशन पे काम करना स्टार्ट करें, तब जिसको हम अंदरूनी शक्ति की बात करते हैं, वो स्ट्रांग होगी, तो कोई आपको तोड़ ही नहीं सकती ना कोई भी सिचुएशन। बिगर द ब्रेक डाउन, बिगर विल बी द ब्रेक थ्रू। मैं एक स्प्रिंग के जैसे बाहर आऊंगी, जैसे बोलते हैं राइज फ्रॉम द फीनिक्स वाली बात, तो एग्जैक्टली उसी तरह से हो जाता है। मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एआई एंड जो वर्ल्ड अभी रैपिडली चेंज हो रहा है, इसमें हमारे फ्यूचर सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? लाइक स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगे या जस्ट बच्चे का स्कोर? स्कोर आपकी ना एंट्री टिकट है, जो आपने एंटर कर लिया, पहली जॉब, दूसरी जॉब, उसके बाद में आपके सीवी के अंदर आप कभी डालेंगे भी नहीं अपना स्कोर, कोई पूछेगा भी नहीं। आपकी स्किल्स वर्क करेंगी। और सिंस आपने एआई वर्ड बोला, इसके अंदर जिसको हम वूका वर्ल्ड भी बोल रहे हैं, इस टाइम पे इतना वॉलेटाइल है ये वर्ल्ड, मतलब लगातार बदल रहा है। सो मुझे लगता है कि टेक्निकल स्किल्स साइमल्टेनियसली लाइफ स्किल्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तभी अभी जैसे सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई ग्रेड 3 से, आइडियल डिसीजन आई वुड से, क्योंकि एआई इंट्रोड्यूस तो कर ही रखा है, पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? वो हमारी जो पुरानी, अगर बहुत ध्यान से देखें, मैथ्स की तरफ अप्रोच ठीक होती, कोडिंग, एआई, एवरीथिंग। सो एक आपका टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, उसकी बात कर लेते हैं, एंड फिर लाइफ स्किल्स की तो हम काफ़ी देर से जो बात कर ही रहे हैं कि ये है, वही तो सक्सेस है लाइफ में। अडेप्टेबिलिटी एक स्किल है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 में कौन सी स्किल है जो बहुत प्राइम होगी, तो उसके अंदर सबसे ऊपर आप गूगल भी अगर करेंगे तो बोलेगा एआई पहले। सो दूसरा वो बोलता है अडेप्टेबिलिटी, कि भाई मैंने आज ये सीखा, अगले पल इसको ड्रॉप, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप ये नहीं, मैंने तो करा था, मेरे जमाने में होता था, यू हैव टू ड्रॉप, बिकॉज एवरी डे, इवन एआई, आज भी अगर आप देखें, चैट जीपीटी का आज सब्सक्रिप्शन मैंने जैसे ही वो करा, तो आई सॉ उसी के अंदर पहले जो एप्लीकेशंस मुझे मिली थी, द 8-9, आई हैड ऑलमोस्ट 22 मोर प्लेटफॉर्म्स टू एक्सप्लोर। कितने दिन में? मेरे ख्याल से महीने भर पहले ही तो पहले करा था। दैट इज द चेंज। सो अडेप्टेबिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए हमारी, कि एकदम से। और एक जो कम्युनिकेशन स्किल से बात करें, एक एम्पैथी जो है ना, ये प्राइम है। आज की जितनी डिजाइनिंग है, एनीथिंग, इवन इफ वी टॉक अबाउट दिस माइक और वी टॉक अबाउट अ मग और एनीथिंग, किसी की बात कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम्पैथी, कि हम दूसरे की जगह अपने आप को रख के एक मिनट देखें तो सही, कि क्या वहाँ से आपका जितनी क्रिएटिविटी, कोई प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, इवन द माइक व्हाट वी यूजिंग राइट नाउ, पहले कैसा होता था, आज कैसा है, व्हाई दिस। तो अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी, जो एआई, ये कॉम्बिनेशन है जो आपको इन दिस वूका वर्ल्ड, जिसको बोल रहे हैं एआई ड्रिवन वर्ल्ड, इसमें ऑपरेट करेगा। और साथ ही में अभी रिसेंटली एक लास्ट एक चीज बोलना चाहूंगी, एआई हमारे लिए है, ह्यूमंस के लिए, हम एआई के लिए नहीं है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। सो प्राइम जो है ह्यूमन, इंसान को प्राइम रखना इम्पॉर्टेंट है। लेट इट बी अ टीचर, लेट इट बी द कोचिंग इंडस्ट्री सर्वर्स टॉकिंग अबाउट एनीवेयर, इट्स इम्पॉर्टेंट। हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री बहुत स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं इसको। बहुत स्मार्टली सर। और अच्छी बात है, आप ट्रेंड्स को या किसी बच्चे का ग्राफ को चेक करना चाहे, हैप्पी, बट देन आप उसको सिर्फ टूल ही रखें, इट कैन नॉट बी अ ह्यूमन ओवर देयर। ये एक डिफरेंस है। जबकि आप चाइना के जो लेटेस्ट रोबोट को अगर आप न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था कि इट हैज़ अ बॉडी टेम्परेचर, इट हैज़ पैल्पिटेशन, स्टिल इट डज नॉट हैव लव, कंपैशन, एम्पैथी। ये रिप्लेस ही नहीं और होगा। यही है जो एजुकेशन जिसके ऊपर हम आज कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स विद। मैम एक क्वेश्चन हमारा पिछले पॉडकास्ट में भी हमने पूछा काफ़ी, कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एआई टीचर्स से आप कनेक्ट रहते हो, तो टीचर्स का क्या मतलब प्रोस्पेक्ट है एआई को लेके, वो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उन कुछ लोग को ये लगता है कि ये रिप्लेस ना कर दे, या कुछ लोग को लगता है कि ये थोड़ा सा मैन पावर जो है स्कूल में कम होके एआई ज़्यादा यूज़ ना हो जाए, तो कहीं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है? ऐसा मुझे लगता है हमारे स्कूल्स में तो इस तरह का नहीं होगा। उसका रीज़न है, उनको पता है कि एआई एज़ अ टूल, एआई इन एजुकेशन
बट नॉट लाइक एआई एज अ टीचर, वो नहीं है। उनको सपोर्ट ही मिल रहा है। अगर आप भैया आप देखो ऑनलाइन मार्किंग जो हुई है ग्रेड 12 की सीबीएसई की, उसके अंदर भी एक सपोर्ट ही था। अगर आप देखें टीचर को टोटलिंग, केजिंग, मतलब आप गए, आपने क्लिक करा, आपने देखा, आंसर मार्क्स दे दिए। सो वो एक सपोर्ट है आपको। पर इट डिपेंड्स टीचर्स को। अगेन मैं वो कई बार बोलती हूँ, ऐसा ना हो कि आप अनजाने अनजाने एआई आपको रिप्लेस तो नहीं, ओवर रूल कर जाएगी। तो वो आपको, यू हैव टू बी स्मार्ट। तभी अडेप्टेबिलिटी है कि मुझे एआई कैसे यूज करना है, कि मुझे हाउ विल आई, मैं चाहे बच्चों का रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं कोई प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं आइडियाज़ की बात कर रही हूँ, और एक सिंपल टेस्ट ले रही हूँ क्लास में, हाउ एम आई गोइंग टू यूज एआई। सो ये फियर ऐसे नहीं है कि रिप्लेस होके कोई और जॉब मिल जाएगी। आई थिंक टेक इंडस्ट्री वगैरह में तो ये चीज़ें बदल रही हैं। एजुकेशन सेक्टर ऐसा रहेगा जहाँ ह्यूमन वुड ऑलवेज बी प्राइम, द टीचर वुड ऑलवेज बी प्राइम। द ओनली थिंग इज फॉर द टीचर्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो मतलब एक सांचे में नहीं अटके रहे, वो सांचा ओपन बदलते माइंड हो रहे। गए, हाँ यू ओपन हैव टू माइंड बी ओपन माइंडेड, यू हैव टू अडेप्ट, यू शुड नो, और एक्सप्लोरेशन लगातार, कि मतलब मुझे आज वो होती है ना कि दैट हंगर टू लर्न, वो टीचर में कांस्टेंट रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। मैम अब मेरा क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है लीडरशिप को लेके, क्योंकि ये इससे पूछे बिना तो मैं आपसे रह नहीं सकता। तो एक सिनेरियो है छोटा सा कि अगर एक प्रिंसिपल है, उनका विज़न बड़ा स्ट्रांग है, पर उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो भी क्या वो स्कूल को टॉप लेवल तक ले जा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं मतलब चाहे मैं अपना लेते हुए और भी मैं बहुत एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। विजन इज प्राइम। आपके रिसोर्सेज को आप उसी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एकदम बेस्ट रिसोर्स हो। आप तब इनोवेशन कहाँ से आता है? इन्हीं से आता है ना, कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हाउ एम आई गोइंग टू क्राइसिस यूज से, इट। हाँ। सो आप आज इतने ऐसे स्कूल्स, इतने ऐसे प्रिंसिपल्स, इतने ऐसे टीचर्स देखेंगे जिन्होंने शायद वहीं के कुछ चीज़ें मिला के उन्होंने अ, जो कैसे बोले पढ़ाने के लिए जो टूल्स उनको चाहिए वो वहीं से बना लिए, उसी से प्रोजेक्ट्स बाहर आ गए। इतने सारे प्रोजेक्ट्स अगर आज आप देखते हो इनोवेशन सेल में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल में आप देखेंगे छोटे छोटे एरिया से वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो मुझे वो कहाँ से, किसी का विजन है, भाई बच्चा अपने आप तो नहीं आया। सो किसका विजन है? वो प्रिंसिपल का है। तो मुझे लगता है विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका विजन एकदम प्राइम होगा तो आप कहीं भी किसी भी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा फर्स्ट एज अ प्रिंसिपल एट द एज ऑफ 30 मेरा था आर्मी पब्लिक स्कूल सूरतगढ़ में। लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उनको अपग्रेडेशन करना था, दिक्कतें थी आर्मी का, वहाँ से स्टार्ट करा। और मतलब अगर आज आप उसको स्कूल को आप देखेंगे, 2.5 years I was there in that school। 2.5 साल के अंदर फिर हस्बैंड की पोस्टिंग हुई, देन वी मूव्ड आउट। इतना सब कुछ चेंज कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा था ये करना है, ये लाना है, ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को विजन दो। तो रिसोर्सेज कभी लिमिटेशन है। और एक आर्मी ऑफिसर की बेटी भी हूँ, वाइफ भी हूँ, फौज इतने से रिसोर्सेज के अंदर, जैसे बोलते हैं जंगल में मंगल रखती है। मतलब हम लोग एक छोटे से टीन वाले घर में भी रह के एंड वहाँ से बेस्ट डिलीवर करते हैं। आई थिंक विजन 100%। थैंक यू सो मच मैम। हमारा ये लास्ट सेशन वर्ड्स ऑफ विजडम का है, वाओ। तो हम चाहते हैं कि आप कोई गुरु मंत्रा दें पेरेंट्स को बेसिकली, जिससे कि जो भी बच्चे की एक्टिविटीज़ स्कूल्स में है, लाइफ बैलेंस है, जो भी वो आप बोलना चाहें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैम हम चाहते हैं आप गुरु मंत्रा दें बच्चे। पेरेंट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को एक घर में एक हैप्पी स्पेस दें, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि घर में कोई नाराजगी, आपस में कोई परेशानी या गुस्सा या लड़ाई ऐसा दे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिजर्व करता है हर बच्चा एक हैप्पी पेरेंट का, सेट ऑफ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और वहाँ से चलते हुए उस बच्चे को सदा ही ये मतलब एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हो, चाहे वो फेल हो गया है, चाहे वो, उसको कभी ऐसे फेलियर में रिजेक्टेड फील नहीं कराएं, या फिर बहुत हाई है तो वैसे नहीं, मतलब जो इसको बैलेंस समहाउ इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करें। और थर्ड है कि आप स्कूल से कनेक्टेड रहें सदा ही। स्कूल को आके मतलब आप
पढ़ें कि आज के डेट पे क्या चाहिए। इज़ द स्कूल प्रोवाइडिंग दैट? चाहे आप इनोवेशन स्पेस की बात करें, स्किल सेट की बात करें, क्या वो डिज़ाइन थिंकिंग आपके बच्चों को करा रहे हैं? क्या वो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं या अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इसको चेक करें। नहीं दे रहे हैं तो आप ले जाइए प्रोजेक्ट्स को। बी कनेक्टेड। लास्ट मैं बोलूँगी कि मार्क्स को एकदम टॉप अहमियत देने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्क्स इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटेंस और द एग्जैक्ट नॉलेज और द डीप नॉलेज ऑफ द चाइल्ड गेन्स, कि उसने सब्जेक्ट को समझा, इसलिए उसको मार्क्स का बाय प्रोडक्ट है, पर एंड रिजल्ट नहीं है। एंड रिजल्ट है वो ज़िंदगी में कैसा करता है, कितना खुश रहता है वो बच्चा, और घर आके क्या आपको बोलता है कि मुझे स्कूल वापस जाना है, या वो स्कूल में ऐसे कभी ऐसा तो नहीं वो बोलता है कि ये बात मेरे पेरेंट्स को नहीं बताओ। कभी कोई टीचर आपको बोलेगा तो उस टाइम पे हमें बैठ के सोचना है कि क्या हम वो स्पेस ही नहीं है जहाँ बच्चा फ्रीली, इवन उससे स्कूल में बड़ी से बड़ी गलती हो गई तो आके आपको बता पाए। सो दिस इज एंड वो मोस्ट ब्यूटीफुल फेज है। एंजॉय करिए और बच्चे को सही गाइडेंस, सही केयर, सही अटेंशन दीजिए। बी विद द चाइल्ड, डोंट लीव द चाइल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ये बताया है कि एजुकेशन सिर्फ सक्सेसफुल प्रोफेशनल को नहीं बनाता, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल, कैपेबल एंड इम्पैथेटिकल इंडिविजुअल्स को बनाता है, ताकि वो इस सोसाइटी में चेंजेस ला सके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये पूरा एपिसोड था, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ओपन माइंड होके बात हुई है, और अलका मैम को बिग थैंक्स है कि उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ों को सामने रखा है जो कि हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच। हम जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू।